Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Ishani and this is the strategy video for science. I've successfully made the strategy videos for all the subjects. जब भी video upload हो जाएगा तो we'll be done with the strategy video for all the subjects, and I'm also going to attach the link for the other subjects that is English, maths, SST down in the description box below. So इस वीडियो को देखने के बाद if you guys want to go through the strategy videos for other subjects as well, you can check the description box. I've attached the links. So let's get started with science now. This video is going to be divided into 4 different parts. I mean, एक ही वीडियो होगा बट इसमें 4 sections होंगे. In the very first one, we'll be talking about some general, tips, general things that you should keep in mind. Then we'll be talking about physics, chemistry, and biology. So first of all, let's get started with the general tips. So tip number 1, if you are a regular viewer of mine, you must know I always begin with the very first point being the NCERT book. So in science also, just like all the other subjects, make sure कि आप जब start कर रहे हो science subject पढ़ना ना, तो you're just sticking with one book, that is NCERT as the foundation. Now I know that for biology NCERT को comprehend करना can be a really difficult task because उसमें literally एक ही paragraph में आपको बहुत सारे concepts साथ में mixed up मिलेंगे, plus कोई proper definition ढूंढना is very much difficult until unless आपको किसी senior की already highlighted NCERT मिली हुई है जिसमें side में notes भी बने हुए हैं, which might be the case with some of you guys, which is a great thing because उसमें आपको biology पढ़ने में बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा. But otherwise NCERT for biology is very ambiguous. If I talk about physics and chemistry, वो तो फिर भी manageable है काफ़ी हद तक. So definitely keep NCERT as your foundation, but उसके अलावा if you are finding it difficult to understand certain concepts, because science में it's all about your conceptual understanding, not really ratification. So for conceptual understanding, I'll suggest one book that you can go along with. Alongside NCERT, like NCERT तो definitely read करनी ही करनी है. ऐसी नहीं कि सबसे पहली किताब आप जो पढ़े हो वो NCERT हो, क्योंकि आप डेफिनेटली समझ नहीं पाओगे अगर आपने पहले से ही नहीं पढ़ा हुआ है. तो सबसे पहली बुक आप रिफ्रेशर रेफर कर सकते हो. आई सजेस्ट लखमीर सिंह. I personally did not refer any other book except for NCERT, but I know a lot of my friends, they did refer लखमीर सिंह and it turned out to be really helpful. I think उसमें थोड़ा डेप्थ में दे रखा है, but I think conceptually आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे. एंड देन यू कैन रीड NCERT. लाइक NCERT तो रीड करनी है. आप सबसे पहले कर रहे हो इट्स ओके, बट पहले नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, बट रिफ्रेशर करने के बाद एक बार यूट्यूब के लेक्चर्स या फिर टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया है वैसे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्लीज गो थ्रू NCERT एटलीस्ट वंस. आई टेल यू व्हाट वाज द केस विद मी. फिजिक्स केमिस्ट्री डेफिनेटली NCERT से मैंने किया था पूरा का पूरा. नोट्स मेरे बनते थे साइंस में. आई हैव मेंशन्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रीवियसली एज वेल. बाकी सब्जेक्ट्स का मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी नोट राइटिंग, बट साइंस में it's a must. Like each and every concept that you study about, you have to make sure कि आप अपने notes के register में उनके notes बना रहे हो in your own language, with your own tips, with your own tricks. Chemistry में भी have, okay, we'll be talking about subject wise section में इस चीज़ के बारे में in detail, but general में I'll just say one thing कि make NCERT your foundation. You can go with a reference like Lakhmeer Singh, or you can even ask for some references from your school teacher. She or he, they oftentimes have a lot of books जो कि उनको seniors ने pass on करी होती है, तो आप वो भी उनसे ले सकते हो second hand. Notes बनाना is extremely important in science. So if you haven't started अभी तक, start making notes because revision के time पे, exams के time पे, they are gonna be a lifesaver. नाउ आई वाज टेलिंग अबाउट कि मेरे साथ क्या केस था. तो मेरे साथ केस ये था कि बायोलॉजी थैंकफुली हमारी जो टीचर थी स्कूल में वो बहुत अच्छे नोट्स लिखवाती थी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो इसलिए मुझे रेफरेंस को यूज़ नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरी टीचर रेफरेंस से पढ़ाती थी इन द स्कूल एंड उसी से वो काफ़ी अच्छे नोट्स डिक्टेट करती थी क्लास में, विच आई यूज टू जॉट डाउन इन द क्लास इटसेल्फ. तो मैं तो अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई पहले जो भी याद करने का होता था या फिर जो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी वो जो मेरे टीचर ने मुझे नोट्स लिखवाए थे क्लास में उन्हीं से करती थी. एंड देन उसके बाद आई यूज टू रीड दी NCERT जस्ट इन केस मैम ने जो कराया है रेफ्रेशर से उसमें कुछ मिस हो गया हो, जस्ट टू चेक दैट थिंग एंड जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी NCERT की अंडरस्टैंडिंग में क्लियर है. बिकॉज जो
सवाल पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, दे आर गोना बी बेस्ड ऑन द लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दी हैं, जो भी डायग्राम्स दिए हैं, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, सॉरी, जो भी बैक एक्सरसाइजेस दी हैं, मेक श्योर यू आर थॉरो विद देम, वो तो करनी ही करनी है जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, प्लस एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है। एंड इफ यू फील कि ये लाइन सिर्फ एनसीईआरटी में दी गई है और कहीं नहीं दी गई है, इनकलकेट देम इन योर नोट्स। नाउ फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। खुद एक सेपरेट नोटबुक बना के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनको लिख कर सॉल्व करना, मे दैट बी एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, इवन थ्योरी क्वेश्चंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, right? But from where do you find out such reliable questions? We have Oswal One for All books. Now this book is one step ahead of question banks, because इसमें जो notes provide करे गए हैं, they are more extensive. uh, you have NCERT के questions, NCERT exemplar के questions, then you have previous year questions, competency, PYQs, you also have mind maps, commonly made errors, everything is there in just this one book. And तभी इसका नाम वन फॉर ऑल है, बिकॉज यू हैव एनसीईआरटी, you have a refresher जिससे आप अपने concepts clear कर सकते हो, and then for question practice this book is one for all. Now I also like to mention one more thing कि अगर आप लोग ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स खरीद चुके हैं एक बार, so there is really no need to go with one for all, because question banks में भी you have PYQs and all the necessary questions जो चाहिए. But if you want like a more extensive approach to learning, then you can go ahead with one for all books as well. ये हमारी साइंस की ऑल इन वन है, एंड वी हैव दिस चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सबसे पहले वी हैव रिविजन नोट्स. आप पहले चैप्टर एनसीईआरटी से करो, एंड देन रिविजन नोट्स. इफ़ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स बाय योरसेल्फ, तो आप इन नोट्स से रिविजन कर सकते हो. वी हैव दिस माइंड मैप एज वेल. ये ओसवाल की हर बुक में रहता है. आई हैव शोन यू गाइस प्रीवियसली एज वेल. एक्टिविटीज से क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत आ रहे हैं आजकल, सो इट्स रियली ग्रेट कि इसमें एक्टिविटीज़ भी मैंशनड है एंड इन डेप्थ नोट्स हैं. ऐसे नहीं है कि रिविजन के नोट्स हैं तो 2 पेजेस में कंप्लीट हो गए हैं. एज यू कैन सी एकदम प्रॉपरली ये नोट्स इस पेज तक जा रहे हैं. एंड देन वी हैव एग्जाम प्रैक्टिस. लाइक एवरीथिंग इज वेरी मच नाइसली क्यूरेटेड इन द बुक. एग्जाम प्रैक्टिस में यू हैव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, देन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर टाइप के अच्छे से सेग्रीगेटेड है. देन वी हैव टॉपिक 2 के रिविजन नोट्स, देन उसके क्वेश्चंस. यू हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसी किताब में. देन यू हैव एनसीईआरटी कॉर्नर. एज आई हैव मेंशन्ड, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स, यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स हम गूगल पे सर्च करते हैं, इस किताब में उसके भी आंसर्स दे रखे हैं हर एक के. एंड देन इसके बाद आई बिलीव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट होती है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर दे रखे हैं. एंड देन बोर्ड कॉर्नर वी हैव, जिसमें PYQs जो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए हैं वो सब भी मैंशनड है. एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इसकी कंसेप्ट क्या अप्लाई हुआ है वो आप देख सकते हो, ताकि अगर आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत गया तो यू कैन सी कि आपका कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ गया था. कॉमनली मेड एरर, आंसरिंग ट्रिप, जो कि हर ओसवाल की किताब में होता है, एज आई हैव सेड. So this is how the chapters are curated. Let's talk about science में section wise, what should be your approach. Getting started with physics सबसे पहले. Now physics is a subject जिसमें आपको conceptually अपने आप को strong रखना is very important. आपको 2 तरह के questions देखने को मिलेंगे, दोनों के mixture भी मिल सकते हैं in your question paper. There are going to be numericals, there are going to be theory based questions, या फिर दोनों का mixture. मतलब एक पहले थ्योरी पूछ ली कि डेफिनेशन बता दो ओम्स लॉ की, एंड देन उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया मे बी. सो डेफिनेशंस इन फिजिक्स यू हैव टू मेक श्योर कि नोट्स में आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन एकदम अलग से नहीं मिलती है, और पैराग्राफ में कहीं छुपी भी मिलती है. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम लेइंग सो मच स्ट्रेस ऑन मेकिंग योर ओन नोट्स. नाउ हाउ कैन यू मेक योर ओन नोट्स? सबसे पहले तो यू हैव टू स्टडी द चैप्टर फ्रॉम अ लेक्चर. ओके, अच्छे से लेक्चर से आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो. जैसे जैसे टीचर एवरी 5 मिनट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं 1 घंटे का लेक्चर है,
You started watching the lecture, you watched it for 5 to 10 minutes, एक स्लाइड उन्होंने एक्सप्लेन करी, then pause the video, note down in your own language जो भी उन्होंने फॉर्मूलेज नोट करवाए, जो भी उन्होंने कंसेप्ट या फिर कोई भी ट्रिक नोट करवाई है टीचर ने, या फिर कुछ बोला है जो तुम्हें लग रहा है कि दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। देन उसके बाद ऐसे ऐसे करके अपने 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करो, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हारा कुछ भी मिस नहीं हुआ है। एंड यू फील कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन अच्छा है, यू नो जस्ट मार्क इट। इफ यू फील एनसीईआरटी की ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, write it down. That is how you will make your notes, not only for physics but for all the other subjects, chemistry and biology as well. Now physics में न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आते हैं तो आप एक फॉर्मूला शीट बना के रख सकते हो। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, बहुत लिमिटेड सिलेबस है फिजिक्स का, सो यू कैन मेक अ शीट and then you can also paste it on your at your study desk और अपने बेडरूम वॉल पे, एंड उसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज होंगे। इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, हर एक फॉर्मूला की अलग अलग फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए, राइट? लाइक एक ही फॉर्मूला है बट उसको बहुत अलग अलग फॉर्म्स में भी लिख सकते हो। यू हैव सच फॉर्मूलाज इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक फॉर्मूला आपके फॉर्मूला शीट में हो, उसका हर एक फॉर्म हो। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी सच लिस्ट और एनीथिंग एज सच। चैप्टर्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड खुद अपने लिए फॉर्मूला शीट क्रिएट करो, ओके? अदरवाइज इफ यू हैव रिफ्रेशर्स, उसमें आपको बैक साइड में जो रिकैप दिया होता है उधर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उधर क्या पता रिकैप में कुछ फॉर्मूलेज स्किप कर दे, मतलब कुछ के फॉर्म स्किप कर दे। यू हैव टू मेक श्योर हर एक चीज हो, बिकॉज उसकी वजह से अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, यू हैव टू जस्ट लुक एट व्हाट इज गिवन, ठीक है, एंड हमको निकालना क्या है। सो दिस इज लाइक द सेम अप्रोच जो कि आप मैथ्स में लगाते हो कि व्हाट इज गिवन, देन व्हाट इज इट जिसकी वैल्यू यू हैव टू फाइंड, एंड देन यू पुट द फॉर्म, यू राइट द फॉर्मूला, उसमें आप वैल्यूज पुट करते हो एंड सिंपली आंसर निकल के आता है। मेक श्योर आप यूनिट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो, पावर की क्या यूनिट होती है, एनर्जी की क्या यूनिट होती है। if you don't write the units, you're going to lose marks, okay? सिर्फ वैल्यू के साथ साथ यूनिट होना भी is extremely important. And then theory फिजिक्स की बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होती है, राइट? ओवर द इयर्स वी हैव सीन न्यूमेरिकल्स के तो फॉर्म्स फिर भी बदलते रहते हैं, दे कैन बी मेड चैलेंजिंग, लेकिन आप थ्योरी डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी इंक्लूड कर दी गई है, बट आई हैव सीन कि कॉम्पिटेंसी में भी इतने ट्विस्टेड नहीं पूछे जाते हैं। तो इफ यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स, तो आप अपने शब्दों में भी थ्योरी फिजिक्स की लिख सकते हैं। सो उसमें आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग पूछी जाती है आपसे, जो भी बैक साइड क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप लिख कर प्रैक्टिस करो। सी फॉर एसएससी आई कैन से कि आप ओरली क्वेश्चंस अपने रिवाइज कर सकते हो, बट फॉर मैथ्स, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस में फिजिक्स, इवन इफ इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो आप डेफिनेटली लिखकर प्रैक्टिस करोगे, बट अगर वो थ्योरी क्वेश्चन भी है उसको भी लिखकर प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता आपको आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है लेकिन आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। सो लिखकर प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली डेफिनेशंस जो होती है ना, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन अगर एक भी वर्ड डेफिनेशन का मिस हो जाता है तो वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाती है। तो कुछ कुछ काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहती हूँ डेफिनेशंस तो आप अच्छे से याद करके बार बार लिखने की कोशिश करो। कोशिश करो कि जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है एग्जैक्टली वही आपको आती हो। डेफिनेटली एग्जैक्टली यही नहीं कि हर एक शब्द रट लो, लेकिन जो भी उसमें कीवर्ड्स दिए गए हैं वो तो आप अपने आंसर में लिख ही रहे हो। फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी, नॉट ओनली फिजिक्स बट फॉर अदर 2 सब्जेक्ट्स एज वेल, आपके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन अगर आपने जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करे हैं तो इट जस्ट शोज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग साइंस की टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, मे बी कंसेप्चुअली हो। तो कीवर्ड्स अपने आंसर्स में यूज करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट वाले चैप्टर से, रे डायग्राम दे लास्ट यू टू मेक। सो रे डायग्राम्स के ऊपर अपनी पकड़ना बिल्कुल स्ट्रांग रखना। रे डायग्राम्स को प्लीज रटने की कोशिश मत करना, टेक योर टाइम, ठीक है? लेक्चर्स देखो, क्लासेस अटेंड करो एंड समझने की कोशिश करो कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। देन आपको खुद आपको पता लग जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर पे प्लेस्ड है तो इमेज किधर पे फॉर्म होने वाली है। इफ यू हैव
कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, किस तरीके से लाइट बेंड होगी या किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, वो रटने की जरूरत नहीं है. इफ यू नो रटिफाई द थिंग्स कि बिटवीन एफ एंड ओ ये होगा, एट एफ ये होगा, यू विल मिक्स द थिंग्स अप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. तो आप समझने की कोशिश करो. ऐसा होना चाहिए कि व्हेन सच क्वेश्चन पॉप्स अप, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यू स्टार्ट making that ray diagram and start visualizing things, जिससे it becomes a lot more easier. सिमिलरली एक्टिविटीज जो आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं उनको एक बार रीड जरूर कर लेना, बिकॉज उनसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते ही हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस. तो वो करना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. फिजिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना अगेन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एंड मेक श्योर जो आप रे डायग्राम्स बनाते हो वो आप रूलर यूज करके, कंपास यूज करके बना रहे हो प्रॉपर तरीके से. अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. फिजिक्स में जो आपके 4 चैप्टर्स हैं उनमें से 2 तो दे आर लाइक हेवीली न्यूमेरिकल बेस्ड, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाला. एंड देन उन्हीं के 2 भाई बहन, यू कैन से, लाइट का इट्स ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी का इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उनके थ्योरी वर्जन्स है. तो थ्योरी मेजरली आपको देखने को मिल सकती है इन दोनों से. तो इन दोनों चैप्टर्स में फॉर्मुलेज यू डोंट रियली हैव. You have to be very strong conceptually, especially in magnetic effects of electric current. तो अपनी again I'm gonna say कि टीचर्स जो पढ़ा रही हैं बहुत अच्छे से सुनो, अपने नोट्स अपनी भाषा में बनाओ ताकि आप फ्यूचर में पढ़ते हो तो आपको खुद समझ आए. डोंट आस्क फॉर नोट्स फ्रॉम एनीवन एल्स. So that's what I'll say for physics. Now physics के साथ ऐसा है कि 9th और 10th की physics is extremely different. ठीक है, इनका एक दूसरे से कोई as such relation नहीं है. So if you weren't strong in physics in 9th standard, you can still do a lot better in 10th because 10th की physics is very easy in comparison to 9th. At least I found so. But अगर हम बात करें chemistry की, तो chemistry में अगर आपकी 9th में chemistry के कुछ concept strong नहीं थे तो I'll suggest please revisit. You can watch a bridge course on YouTube so that you can understand कि हम कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से उनको बैलेंस किया जाता है. बिकॉज 10th में ये सारे के सारे कंसेप्ट काम आने वाले हैं. सो इफ यू फील कि 9th में ना पढ़ के हम सीधे 10th में केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, सो जस्ट रीथिंक अबाउट इट. लाइक हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो नहीं आती है 10th में काफ़ी सारी चीज़ें, आइसोबार्स, आइसोटोप से रिलेटेड कंसेप्ट्स. डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं ना, जैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, इक्वेशंस केमिकल, जैसे कि जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको आपको बैलेंस करना आना चाहिए, फॉर्मुलेज किस तरीके से बनते हैं, यू शुड नो अबाउट देम. एटॉमिक नंबर आना चाहिए, वैलेंसी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स, मतलब हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री. इट्स ऑल बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो आपको ध्यान में रखना है, पुराने कंसेप्ट के साथ आगे आगे बढ़ना है, वरना आपको नहीं आएगा समझ. इफ यू रीड अ रैंडम लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री एंड इफ यू डोंट नो व्हाट compound, if you don't know what valency is, if you don't know what these technical words are, you are not going to understand. क्योंकि 9th में पढ़ा दिया जाता है and expect किया जाता है कि 10th वाले बच्चों को तो याद ही होगा. So just revisit your 9th standard once. अब केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स में इट्स लाइक फॉर्मुलेज दैट यू हैव जो आपको ध्यान में रखने होते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. केमिस्ट्री में इट्स द केमिकल इक्वेशंस जो आपको ध्यान में रखनी होती है. तो आई सजेस्ट कि केमिकल इक्वेशंस हर एक चैप्टर में, या 4 चैप्टर्स, सो हर एक चैप्टर में जो भी आपको केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं उनको चैप्टर वाइज आप सेग्रीगेट करके लिस्ट बना के रख लीजिए. एंड दे शुड बी इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, क्योंकि उनके बाहर से कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती है. तो वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको आना चाहिए. सिर्फ वो केमिकल इक्वेशन रटनी ही नहीं है, डेफिनेटली एकदम अच्छे से याद करके रख लेनी है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि ओके अगर हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है, एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन, तो उसके ऊपर क्या लिखा है एनसीईआरटी में, उसके नीचे उसके बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है. एंड वो चीज़ आप अपने नोट्स में अपनी भाषा में लिख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं,
वी हैव अ लॉट ऑफ इक्वेशंस फॉर सॉल्ट्स एज वेल, तो उनकी एप्लीकेशंस भी लिखी हुई है, दे आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार आपको केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है, आपको आइडेंट मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ये लोग केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से, इसलिए उनके बारे में आपको A to Z जो भी आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ दे रखी है इन दी एनसीईआरटी इटसेल्फ, रिफ्रेशर्स में एक्स्ट्रा दे रखी हो सकती है, सो डोंट रश बिहाइंड देम, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे टीचर्स अगर कुछ बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है वो, एंड जो एनसीईआरटी में दी है वो, those are the only chemical equations you have to have a very clear understanding of. And similarly activities जो दे रखी है केमिस्ट्री में इन दी एनसीईआरटी, उनमें भी काफ़ी सारे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में बात करी जाती है, तो आपको वो भी आने चाहिए। Remember potassium permanganate, okay, I think it's in biology में भी chemistry का कुछ कुछ part है। So all in all that I want to say is कि activities पढ़ना is extremely important in chemistry, because again उनसे competency questions देखे जाते हैं। जो आपको डायग्राम्स दे रखे हैं केमिस्ट्री में, उनको बनाने के लिए तो आज सच आई डोंट थिंक आने वाले हैं, बिकॉज बनाने के लिए मोस्टली बायोलॉजी से आते हैं डायग्राम्स, बट मे बी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाए, या फिर उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर द डायग्राम्स इन केमिस्ट्री एज वेल। डायग्राम्स एंड द फिगर्स दैट यू हैव इन केमिस्ट्री, जिसमें स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, बिकॉज उसमें काफी सारी छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, and they can ask you in filling the blanks to competency type ki what actually sort of reaction is going on, and what is going to be the outcome of that particular reaction. You also have कुछ chapters में do you know वाले boxes, for example जो chapter 1 है उसमें calcium hydroxide से related, calcium carbonate से related white washing वाला एक do you know का box है, उससे काफी बार questions आते हैं, तो मतलब NCERT की कोई भी line नहीं छोड़नी है। That's what I want to say again for all the subjects, not only for chemistry. In text questions भी solve करने हैं, backside questions भी solve करने हैं अच्छे से at least twice. Another really important thing that I wanted to mention is कि chapter के end होने पे ना एक recall box दिया जाता है NCERT में, it's called what you have learned. I'll show you. पिंक कलर का होता है इस तरीके का, ये ना बहुत हेल्पफुल होता है नोट्स बनाने के लिए। लाइक आपको अगर कोई लाइन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को कैसे लिख सकते हो, तो काफी बार डायरेक्ट डेफिनेशंस एंड काफी बार कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको व्हाट यू हैव लर्नड वाले बॉक्स में दी जाती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको भी रीड करो। डेफिनेटली ये पूरी की पूरी चैप्टर से ही होती है, लेकिन काफी बार मिस हो जाती है, तो व्हाट हैव यू लर्नड इज अ बॉक्स दैट यू शुड रेफर अगेन फॉर ऑल थ्री। एंड लास्टली वी हैव बायोलॉजी। नाउ जैसे कि न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूले आर फॉर फिजिक्स, chemical reactions, chemical equations are for chemistry. Similarly biology में diagrams and terminologies are very important. Diagrams आपको बनाने के लिए बोले जाते हैं। Now I know that some diagrams like that of the heart, like that of the brain, थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं बनाने के लिए। So for that I'll say कि आप लोग थोड़ा सा YouTube स्क्रॉल करो एंड देखो कि अलग अलग टीचर्स ने आपको ना बहुत सारे इजी तरीके बताए होंगे कि आप इन डायग्राम्स को कैसे बना सकते हो। बट जस्ट मेक श्योर कि एनसीईआरटी में जो भी चीजें लेबल हो रखी हैं वो आप उस डायग्राम में लेबल करो, और बना आप अपनी तरफ से सकते हैं सिंपल तरीके वाला भी, नो इश्यूज एट ऑल। हार्ट के बहुत ईजी डायग्राम्स मिल जाएंगे, बट जस्ट मेक श्योर कि एनसीईआरटी में जो भी लेबलिंग्स हो रखी है वो आप अपने हार्ट में करें। एंड दूसरी बात ये कि अगर आप अपने खुद का एक इजी वर्जन ऑफ डायग्राम सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं याद करने की कोशिश करें। डेफिनेटली बनाने के लिए जरूरी नहीं है आप एनसीईआरटी का ड्रॉ करें, बट लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए उसको डायग्राम को रीड करना अपनी विजुअल मेमोरी में अच्छे से फिट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या पता आपको एनसीईआरटी का हार्ड डायग्राम क्वेश्चन पेपर में दे दिया एंड यू विल बी आस्क्ड टू लेबल certain things, तो इसलिए आप you should be familiar with the NCERT diagrams बहुत अच्छे से। काफी बार NCERT diagram देकर सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इफ यू आर लर्निंग योर ओन फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, डोंट नेग्लेक्ट NCERT वाले वर्जन ऑफ डायग्राम्स, दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनको प्रैक्टिस करो। जो बन सकते हैं NCERT से सेम टू सेम उनको तो वैसे ही बनाओ, लेकिन अगर कोई नहीं बन रहा है तो आप उनका ईजी वर्जन ढूंढ सकते हो। बट NCERT डायग्राम्स आपको बहुत बहुत अच्छे से आने चाहिए। नाउ बायोलॉजी,
का मेरा अप्रोच क्या रहता था, आई ऑलरेडी मेंशन कि सबसे पहले तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरी टीचर मुझे नोट्स लिखवाती थी, यू गाइस मस्ट बी हैविंग योर कोचिंग नोट्स एज वेल, तो आप उनको उनको पहले रीड करो डायरेक्टली। आई वुडंट सजेस्ट टू जंप राइट इनटू द एनसीईआरटी बिकॉज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इफ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अपने टीचर्स के साथ सबसे पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करो, यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, एंड देन रीड द एनसीईआरटी एकदम आराम से बैठ के हाइलाइटर के साथ रीड द एनसीईआरटी हर एक लाइन, एंड देन अपने माइंड में रिकॉल करते रहो कि ओके दिस इज द लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ओके दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज व्हाट फोटोसिंथेसिस इज, these are the conditions for photosynthesis, this is what happens, and you'll be like okay ये सब मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ये सारी की सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, एंड देन मूव अहेड टू द नेक्स्ट लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी। एंड इफ यू कम अक्रॉस अ लाइन जो कि इन द एनसीईआरटी जो कि आपको कहीं और नहीं मिली थी, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है? ऐसे करके आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एंड यू विल फाइंड कि बहुत ईजी हो जाएगा एनसीईआरटी समझना बायोलॉजी की। तो सबसे पहले रिफ्रेशर्स से, अपने टीचर्स के नोट्स से, अपनी कोचिंग की नोट्स से, यूट्यूब लेक्चर्स से खुद के नोट्स बनाओ, एंड देन लास्ट में एनसीईआरटी रीड करो बायोलॉजी की। मिस नहीं करना है, रीड तो डेफिनेटली डेफिनेटली करनी है। डायग्राम्स के बारे में बता दिया, डू यू नो वाले बॉक्सेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आपकी एक्टिविटीज है सुपर 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 इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स में ना एक्टिविटीज को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। आई नो कि बायोलॉजी में इतनी सारी थ्योरी होती है तो बार बार आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, दैट इज व्हाई आई एम लेइंग सो मच एम्फेसिस ऑन मेकिंग डाउन योर ओन नोट्स। यू कैन ऑल्सो फाइंड नोट्स ऑफ सर्टन यूट्यूब टीचर्स, उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड करी होती है। आई रिमेम्बर पढ़ले करके एक यूट्यूब चैनल है, एंड इफ यू गाइस वांट टू नो कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स रेफर करे थे for each and every subject, I've also made a video for that, so you just have to like go through my channel एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लो, you'll get that video। तो उसमें मैंने सब कुछ विदाउट एनी स्पॉन्सर एकदम प्रॉपरली बताया गया है। तो पढ़ ले वॉज द चैनल दैट आई रेफर टू, एंड उन्होंने नोट्स प्रोवाइड करे थे। सो आई स्टडीड फ्रॉम दोज नोट्स एज वेल, उनकी मदद से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन स्टिल फाइंड दोज नोट्स, बट ट्राई सर्चिंग फॉर इट, एंड अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप डाउन योर कमेंट, आई विल सर्च इट फॉर यू, एंड मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, बट आई थिंक यू विल फाइंड इट। यूट्यूब पे सर्च बार पे जाके सर्च करना पढ़ ले वाला चैनल, पढ़ ले टेंथीज, तो उनके ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। वो लोग ना पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करते थे। तो पीवाईक्यूज अगेन साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो मेंशन प्रीवियसली, यू कैन चेक आउट ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स, ओसवाल की वन फॉर ऑल बुक्स, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उनको ऑर्डर करके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज साइंस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। काफी बार जो क्वेश्चंस आपकी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखे हैं, बट वो प्रीवियसली किसी ईयर में पूछे जाते हैं, आई डोंट नो बहुत साल पहले, 5-10 साल पहले। तो इफ यू वांट योर प्रेपरेशन टू बी 100%, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन पीवाईक्यूज। एक बार you should be thorough with them. Another very important thing is from the heredity chapter, उसमें काफी सारी चीजें याद करने की होती है। डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स कौन से होते हैं, मेंडल ने जो आप यू कैन मेक अ टेबल फॉर दैट, एंड आप अपनी खुद की ट्रिक्स, अपनी खुद के एक्रोनिम्स बना सकते हो, लाइक आई डिड। एंड इफ यू गाइस हैव सर्टेन रिफ्रेशर्स या फिर इफ यू हैव ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स, आई यूज्ड टू हैव देम, तो उसमें ना नोट्स दे रखे होते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उसमें आपको एक्रोनिम्स, निमोनिक्स याद करने की ट्रिक्स भी दे रखी होती हैं। सो दे turned out to be really helpful for me. I don't really remember the acronym that I made, but मैंने कोई short form सी बना दी थी, उसकी मदद से मैंने सारे के सारे dominant and recessive traits and जो भी mental के जो भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम थे, जो कंक्लूजन था, उसको याद किया था। एंड यू शुड नो देयर इज वन टॉपिक, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, जिसमें पूरा टेबल बना के राउंड, ग्रीन, येलो जो भी है आपको अल्टीमेटली देखना होता है कि ऑफ स्प्रिंग किस तरीके का होगा। उसमें रेशियोज, 2 रेशियोज होते हैं, यू शुड नो अबाउट देम एज वेल बहुत अच्छे से। like ray diagrams you cannot miss out on, because उनमें definitely एक question आता है। Similarly, how do traits get expressed from heredity chapter, you should not miss out on these as well, because इनसे definitely एक question आएगा। and प्रोसेसेस जो हैं आपकी बायोलॉजी में, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, वो प्रोसेसेस आपको बहुत बहुत अच्छे से आने चाहिए, लाइक एकदम क्लियर कर लो। आई से जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में भी, व्हेन यू आर हैविंग योर फूड, व्हेन यू आर एस्पायरिंग, जस्ट ट्राई टू रिलेट टू दोज थिंग्स जो आपने पढ़ी थी,
then you'll see कि the things become really interesting and आप कभी नहीं बोलोगे processes are extremely important in biology. Diagrams are extremely important. Definitions कुछ ये डेफिनेशंस आप खुद भी बना के लिख सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बट एक बार एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ना अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हार्मोन्स जो आपके कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें हार्मोन्स की भी आप टेबल बना सकते हो. उनको बहुत बहुत अच्छे से याद करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट हार्मोन्स एंड देन उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देन एनिमल्स में जो हार्मोन्स होते हैं एंड देन उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट क्रिएटिव वेज कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो. आई रिमेंबर मेकिंग अ टेबल फिर हार्मोन्स याद करने के लिए. उससे काफ़ी अच्छे से याद हो गए थे. एंड आई यूज टू प्रैक्टिस डायग्राम्स ऑन द वाइट बोर्ड दैट आई हैड एट होम. बड़े बड़े डायग्राम्स बना के मैं बार बार प्रैक्टिस करती रहती थी. आई यूज टू लाइक imitate माई टीचर्स. जैसे मैं टीचर हूँ एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग टू अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स इन माई बेडरूम. तो उससे बहुत अच्छे से बायोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर होते हैं. यू कैन डू दैट इन हिंदी एज वेल, नॉट नेसेसरली इंग्लिश. एंड रिटन प्रैक्टिस डेफिनेटली करना. आपको बायोलॉजी में रेस्पायर कैसे करते हैं आपको सबको आता होगा, बट उसको इंग्लिश में फ्रेम करके लिखना इज अ टास्क इन इटसेल्फ. तो रिटन प्रैक्टिस जितनी बार करो उतना अच्छा है. सो जो आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप रिटन तरीके से कर रहे हो. लाइक open the question bank, open the PYQs, and what do you have to do? जो क्वेश्चंस हैं बस उनको देखो एंड आंसर्स हाइड करो उनके ऊपर नोटबुक रख के. खुद लिखो आंसर एंड देन चेक करो कि कितना एक्यूरेट था तुम्हारा आंसर. राइट, दिस इज हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एंड देन एनसीईआरटी से जो आपको एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स के बॉक्सेस दिए जाते हैं, प्लीज उनको बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ लेना. और अदर सब्जेक्ट्स में मेंशन द सेम. स्पेशली जो आपकी एक्टिविटीज का कंक्लूजन क्या है, आउटकम क्या है, ये सब करने के बाद what do you actually conclude, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. Similarly in text questions you have to do written practice में text questions, written practice of backside questions, and that's pretty much it for biology. Do not miss out on reading the NCERT. लोग NCERT पढ़ते ही नहीं biology की, just looking at how much theory there is, but trust me, एक बार concepts clear करके पढ़ो, आएगी समझ. फिजिक्स की एनसीईआरटी भी रीड करना, केमिस्ट्री की भी करना, वो तो ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए बिकॉज उसमें आपके कंसेप्ट सेग्रीगेटेड है. बट बायोलॉजी में ना एक ही पैराग्राफ में सब कुछ मिक्स कर रखा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. So that's it for the video, and this is all that you have to make sure when you're studying science. And definitely आपको जो भी तरीका सूट करता है, you find more. So that is it for the video today, the science strategy video. I shared all the tips and strategies that worked for me. I just hope they will work for you as well. बहुत ही basic सी थी, but I will want you to keep these things in mind. And apart from that, अपने खुद के तरीके जो आप use करते आ रहे हो, definitely you can keep on using them. They'll definitely help you a lot because no one really knows what works for one person except for that person itself. तो आपके लिए जो भी तरीका, जो भी चीज़ें काम करती हैं to memorize things, to understand concepts, please follow that if it works for you. मैं ये और subjects के लिए बता चुकी हूँ, so I'll be saying the same for science as well in case you guys haven't watched my other videos. कि हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मेक श्योर कि आप स्टिकी नोट्स में उस चैप्टर की एक छोटी सी समरी लिखे जिसमें आप लिख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, एंड पेस्ट इट इन on your wall. Right, so ऐसे करके you'll have 12 to 13 जितने भी number of chapters you have in your syllabus, sticky notes on your walls, and आप सुबह उठोगे then you can actively recall कि okay this is the chapter, these are the topics and I know all of them. So उससे confidence boost होता है कि जैसे जैसे आपके chapters होते जाएंगे वैसे वैसे the number of sticky notes on your wall will keep on increasing. So you can also summarize your chapters on sticky notes. It worked really really nicely. So if you liked the video and you found my study tips helpful, do share it with your friends and family, and make sure you like the video, subscribe to my channel, and check out my other videos, the strategy videos on all the other subjects as well. And if you have any sort of doubts or queries, you can reach out to me. So see you guys in the next one, and all the best.